Hello dear students, a very wonderful and a cheerful morning to you all. This is your Neetu ma'am and welcome you all to the online educational platform of Defense Services Academy. Now, as we have started NDA Crash Course 2020, remember ये 70 दिन है तुम्हारे पास. ये 70 दिन तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं and I know you will change your life with this 70 days NDA Crash Course 2020. Now, as we have started the whole detailed revision of English grammar for NDA English exam, you have to score out of marks in NDA English. Deal is, you have to study hard and you have to pay attention on what's going on in each and every lecture. उसके बाद कुछ भी doubt है, no need to fear when Neetu ma'am is here. Now, we have started spotting the errors. We have started the revision of grammar rules. We have started spotting the errors revision. हमने कल last 10 years के question से start किया था. We have done 45 sentences of spotting the errors. Now today, to continue that segment, to continue the last year questions of spotting the errors, today we'll complete the series of last year sentences, last year questions. और अगर आज पूरे questions नहीं होते, tomorrow is the last day for spotting the errors segment. अगर आज हो जाते हैं well and good. अगर आज कुछ sentence बच भी जाएंगे, तो tomorrow we'll complete the topic of spotting the errors with the revision of last 10 years questions. उसके बाद we'll start the next topic. So let's start the revision of spotting the errors of last 10 years question. Are you ready? Yes, let's start. So students, yesterday we completed till 45 sentences. We have completed 45 sentences. Today I'm going to start paper number of 2014, paper number 2. We are going to solve the exercise of spotting the errors, the sentence of spotting the errors which came in 2014 paper. Now read the sentence. It was nearly 30 years ago. It was nearly 30 years ago. Nearly means almost. हमने ये क्लास में किया है. लगभग. Nearly means लगभग या almost. 30 years ago, since this magazine was first published, मतलब 30 साल हो चुके हैं जब से ये मैगजीन पब्लिश हुई है. 30 साल हो चुके हैं. Now, यहाँ पर nearly मतलब लगभग. Whenever the time duration is given, the clear time duration is given, that means definite time period is given. डेफिनेट टाइम पीरियड दिया है, क्लियर टाइम ड्यूरेशन दिया है, आपको क्लियर एक फिगर दिया है, डेफिनेट फिगर दिया है, तो नियरली यूज नहीं होता. नियरली एक टेंटेटिव है. नियरली एक टेंटेटिव वर्ड है. लगभग, अंदाजन. बट हमको यहाँ 30 इयर्स का डेफिनेट टाइम पीरियड दिया हुआ है. जब पूरा क्लियर टाइम पीरियड दिया है, उसके साथ नियरली की जरूरत नहीं है. नियरली वहां यूज होता है जब हमें डेफिनेट टाइम पीरियड या डेफिनेट ड्यूरेशन नहीं पता या डेफिनेट फिगर नहीं पता. जब डेफिनेट फिगर पता है तो नियरली यूज नहीं होगा. वहां पर इट वॉज अबाउट यूज होना है, नियरली नहीं. तो एरर इज इन ए पार्ट. Now the next sentence. Now see, hardly had he entered the room. Hardly had he entered into the room. Now see, hardly. I gave you the rule yesterday. Whenever the sentence start with no sooner, never, hardly, scarcely, इनके बाद immediately helping verb चाहिए. See, यहाँ पर helping verb है या उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट है. दैट मीन्स यहां तक तो ये सेंटेंस क्लियर है. वन मोर थिंग, ये चीज हम कल कर चुके हैं. सी, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूं इतने सेंटेंस सॉल्व करके बच्चा, कि जितने भी सेंटेंसेस हम कर चुके हैं या हम कर रहे हैं, उसमें कुछ ही रूल्स हैं जिसपे सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो यू मस्ट पे अटेंशन टू दैट.
कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है. यू मस्ट हैव अ कंसेप्चुअल नॉलेज. कुछ रूल्स आपने बहुत अच्छे से कर लिए, आपका पेपर सॉल्व. नाउ सी, एंटर्ड इनटू, हमने कल भी एक सेंटेंस किया है इस पे. रिमेंबर, एंटर्ड इनटू सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन. एंटर मतलब अंदर आना, इनटू मतलब अंदर आना. जब एंटर होके वो रूम के अंदर आ ही गया है, इनटू होके और कितना अंदर आएगा. एंटर मतलब अंदर आना. ही एंटर्ड द रूम मीन्स वो रूम के अंदर आ गया, या ही केम इनटू द रूम. एंटर का मतलब ही है केम इनटू. एंटर का मतलब ही है अंदर आ जाना, तो इनटू की जरूरत ही नहीं है. या तो आप एंटर्ड यूज करो या इनटू यूज करो, दोनों वर्ड्स एक साथ यूज करना एरर. गॉट दिस? अब मुझे लगता है ये चीज तो रट गई होगी. हार्डली के बाद हैड आता है, या हार्डली, स्केर्सली, नो सूनर, नेवर. इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, एंटर्ड इनटू रॉन्ग वर्ड. क्लियर? वन मोर. नाउ चेक आउट दिस. It is high time we cried a halt to the existing corrupt practices followed in the educational suffer. That means अब बहुत हो चुका, हमें कुछ आवाज उठाना चाहिए. Now I gave you the rule. जब भी it is high time आएगा, that means बहुत हो चुका, that means long awaited इवेंट. लॉन्ग अवेटेड इवेंट. इसके बाद हमेशा और हमेशा V2 आता है, याद रखना. अब ये तो हुआ एक. इसका एक और, अगर इट इज टाइम आएगा, इसके बाद V1 आता है, याद रखना. दैट मीन्स अगर इट इज हाई टाइम, बहुत टाइम हो चुका, अब बहुत हो चुका, दैट मीन्स आप बहुत टाइम से वो एक्शन कर रहे हैं. दैट मीन्स अब आपको वो चीज चेंज करनी है. दैट मीन्स अब आपको पास्ट टेंस यूज करना है. तो यहां पर इट इज हाई टाइम के बाद V2 होता है, और इट इज टाइम के बाद यहां पर पास्ट टेंस होता है. नाउ इज दिस सेंटेंस करेक्ट? रीड द सेंटेंस. इट इज हाई टाइम. क्या वो सेंटेंस ठीक है? चेक करो उस चीज को. क्या वो सेंटेंस ठीक है? इट इज हाई टाइम. क्या वो क्लियर है सेंटेंस? यस. वी क्राइड, यहां पर पास्ट टेंस है. दिस सेंटेंस इज करेक्ट. नाउ द सिचुएशन इज पेरिलियस. व्हाट डू यू मीन बाय पेरिलियस? मतलब भयानक, मतलब डेंजरस. बट इफ वी आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली टू एक्ट. प्रॉम्प्टली मतलब जल्दी से एक्ट करना, प्रॉम्प्टली एकदम से, प्रॉम्प्ट आंसर, इंस्टेंट, एकदम से रिएक्ट करना. तो अगर ऐसा है, इफ वी आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली टू एक्ट, देयर इज स्टिल वन चांस ऑफ एस्केप. अभी भी एक चांस है बचने का. गलती कहां है? प्रॉम्प्टली टू एक्ट. प्रॉम्प्टली क्या है यहां पर? प्रॉम्प्टली यहां पर एडवर्ब है. प्रॉम्प्टली यहां पर एडवर्ब है. नाउ प्रॉम्प्टली लगेगा कैसे? रिमेंबर हमने एक वर्ड किया था. नाउ एडजर्न्ड एब्रप्टली. रिमेंबर वी डिड द सेंटेंस, द मीटिंग एडजर्न्ड एब्रप्टली. एडजर्न्ड वर्ब है, एडवर्ब है एब्रप्टली. एडवर्ब कहां लगेगा? ly वाला एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद लगता है. कैसे? नाउ सी दी सिंपल एग्जांपल्स. शी राइट्स नीटली, शी सिंग्स स्वीटली. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? शी नीटली राइट्स. क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट. जो ly वाला एडवर्ब है वो वर्ब के बाद आता है. रिमेंबर, एडजर्न्ड एब्रप्टली. द मीटिंग वाज एडजर्न्ड. एडजर्न मतलब रुक जाना, स्टॉप कर देना. मीटिंग को एकदम से रोक दिया गया, तो एडजर्न्ड एब्रप्टली. इसको याद रखने के लिए शी राइट्स नीटली. तो नीटली कहां आ रहा है? वर्ब के बाद. नाउ चेक आउट द मिस्टेक. वी आर प्रिपेयर्ड प्रॉम्प्टली टू एक्ट या टू एक्ट प्रॉम्प्टली? तो आंसर होगा प्रिपेयर्ड टू एक्ट प्रॉम्प्टली. प्रॉम्प्टली टू एक्ट रॉन्ग. ly वाला एडवर्ब हमेशा वर्ब के बाद आता है. शी राइट्स नीटली. शी राइट्स नीटली. The car stopped suddenly.
जितने भी ly एडवर्ब हैं वो वर्ब के बाद। नाउ सी वन मोर इजी, हम ऐसे सेंटेंस कर चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग ईयर 2014 पेपर, फर्स्ट पेपर, फर्स्ट सेंटेंस। द पाइल ऑफ बुक्स, पाइल ऑफ बुक्स कलेक्टिव नाउन। पाइल ऑफ बुक्स, जैसे आप क्लासरूम में बुक्स की लाइन लगा देते हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लाइन लगा दी बुक्स की, तो पाइल ऑफ बुक्स। अब इतनी सारी किताबें हैं, एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, बहुत सारी बुक्स होने के बाद भी व्हाट इज दिस पाइल? पाइल इज अ कलेक्टिव नाउन, दैट मीन्स वन ग्रुप ऑफ बुक्स। तो when collective nouns are used, that is treated as a singular subject, and you all know singular subject take singular verb with them. Such a easy question, आप लोग कर चुके हो ऐसा। Clear? Now the next. Now again easy, बहुत easy है, आप लोग को पता है। Either he or I, either he or I, either or, either or दो लोगों में, दो चीजों में, दो यूनिट में यूज होता है। फर्स्ट सेकेंड, यहां तक ठीक है, एक के साथ आइदर, एक के साथ और। अब आइदर और मीन्स या तो ये या वो। ना सी आइदर ही और आई, या तो वो या मैं, दोनों में से कोई एक। बेटा जब भी कंफ्यूजन हो ना, जस्ट मेमोराइज माय वर्ड्स, जो मैं आपको बोल रही हूं क्लास में उसको ध्यान से सुनो, लिखा हुआ कभी भी भूल जाओगे, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू जस्ट मेमोराइज दीज थिंग्स। तो आइदर ही और आई, जो मैं हर बार कैसे बोलती हूं, या तो वो या ये, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, मतलब बात कितने की हो रही है? एक की। अगर नाइदर नॉर यूज है, ना तो ये ना वो, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो चाहे आइदर और हो, चाहे नाइदर नॉर हो, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक। बात सिंगुलर सब्जेक्ट की है, तो यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब विथ देम इज। नाउ सी, अगर आपको रूल्स की प्रैक्टिस है, अगर हम इतने सारे सेंटेंस कर चुके हैं, अब सेंटेंस इजीली आएंगे आपको, इजीली। नाउ प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क। ये तो आप आराम से कर सकते हो, क्या गलती है इसमें? As you all are my intelligent students, easily समझ में आ रहा है। Please tell to him, tell के बाद कभी to लगता ही नहीं है, to him नहीं, please tell him, please उसको बताओ, to की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। Please tell him to do his work, please inform him to do his work. तो to is wrongly given here. Now see, 3 sentences and all the 3 so easy to do. Now the next. Now, though he is good, he is mischievous. Is this sentence correct? Though he is good, he is mischievous. Now, sentence अगर आपने simple complex compound पढ़ा है, sentence में अगर but हो, but remove होता है, तो sentence दो से start होता है। That means दो अगर लगा है, तो हमें but नहीं चाहिए। यहाँ पर though he is good, he is mischievous. दो मीन्स नो मैटर वो अच्छा है, बट वो थोड़ा सा बदमाश है। तो सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज यहाँ दो इज गुड बट नहीं लगा, तो सेंटेंस इज नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस, सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट। नाउ ये भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। द थीफ हिट मी, उस चोर ने मुझे मारा। कैसे मारा? एकदम से। नाउ रिमेंबर, हमने अभी एक रूल किया, जब भी ly वाला एडवर्ब है वो वर्ब के बाद लगेगा। रिमेंबर, द बॉय सिंग्स स्वीटली, द गर्ल राइट्स नीटली। बेटा जो मैं आपको ये वर्बली एग्जाम्पल्स दे रही हूं ना, जस्ट ऑलवेज कीप दिस एग्जाम्पल इन द माइंड। द कार स्टॉप्ड सडनली, तो पहले क्या आया? वर्ब, फिर ly वाला एडवर्ब। सी, पहले वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब जिसमें l लगा है। सडनली मतलब एकदम से। यहां तक सेंटेंस करेक्ट है। नाउ सी हार्डली, अब हार्डली भी सडनली के जैसे, सडनली हार्डली, क्या ये ठीक है? रिमेंबर वी हैव डन करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। अगर आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, यू नो दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड हार्डली? हार्ड एंड हार्डली, remember wrong usage of adjectives, correct use of adjectives, this is that.
हमने जो जो टॉपिक बेटा क्लास में किए हैं सब टॉपिक पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा. दिस इज माय चैलेंज टू यू. ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो हमने कभी ना कभी क्लास में किसी ना किसी फॉर्म में डिस्कस नहीं किया. वी हैव डिस्कस दिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड? हार्ड मीन्स डिफिकल्ट या विथ लॉट ऑफ एफर्ट. Now what do you mean by hardly? Hardly means rarely. अब I'm giving you example for both these adjective. Now you decide कि क्या correct है. Hard के लिए दोनों meaning के लिए दो sentence. The paper was hard. That means the paper was difficult. He works hard. That means वो बहुत मेहनत से काम कर रहा है. He studies hard. वो बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा है. Do the hard work. मेहनत से काम करो. दैट मीन्स रिक्वायरिंग लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत मेहनत, बहुत प्रेशर लगा के, बहुत जोर से, बहुत प्रेशर से. नाउ हार्डली मीन्स रेयरली. ही हार्डली स्टडीज मीन्स वो कभी कभार पढ़ता है, वो मुश्किल से पढ़ता है. नाउ दिस हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड. ही हार्डली कम्स हियर. वो कभी कभार ही यहाँ आता है. वेरी ऑफन, मुश्किल से कभी आ जाए. He hardly studies, वो मुश्किल से कभी पढ़ाई करता है. Now put the word. तो क्या उसने मुश्किल से कभी मुझे मारा? No, उसने मुझे जोर से मारा. तो यहाँ पे हार्ड चाहिए, हार्डली नहीं. Now see, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, what we have started from the root thing. हमने बहुत छोटी छोटी चीज से स्टार्ट किया और वो सारे छोटे छोटे रूल्स, सारे बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर काम आएंगे. अगर आपने एडजेक्टिव्स अच्छे से किए हैं, हार्ड और हार्डली का आपको मीनिंग पता है, सो यू नो द एरर क्लियरली. नाउ द नेक्स्ट रूल. नाउ सी, ये हम कर चुके हैं. अगेन, द नंबर ऑफ बुक्स. हमने रूल किया है जब भी द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ फ्रेजेस आएंगे, इनके बाद प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए. ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. अब यहां तक इस सेंटेंस को चेक करते हैं. द नंबर ऑफ बुक्स, तो यहां तक तो ये करेक्ट है. इसके बाद का रूल है, इसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए. किसके बाद? द के बाद. और आ के बाद हमें प्लूरल वर्ब चाहिए. अगर द नंबर हो तो सिंगुलर बिकॉज डेफिनेट आर्टिकल. आ नंबर हो मीन्स प्लूरल बिकॉज इनडेफिनेट आर्टिकल. यहां द नंबर लगा है, यहां इस लगा है. दैट मीन्स ये नो एरर सेंटेंस है. दैट मीन्स इसमें कोई एरर नहीं है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. नाउ सी, 5 सेंटेंस 2014 के हमने किए एंड एवरी सेंटेंस वाज सो इजी टू डू. कोई प्रॉब्लम ही नहीं उसमें. नेक्स्ट बेटा, जो हमने रूल्स का रिवीजन किया है, अगर आप उस रूल्स के रिवीजन को भी अच्छे से फॉलो करोगे ना, देन ओनली यू विल बी हैविंग एन ईज टू डू ऑल द थिंग्स. नाउ चेक आउट द नेक्स्ट सेंटेंस. द जनरल सेड. जनरल ने बोला, सोल्जर्स डू नॉट फायर. जनरल ने बोला, सोल्जर्स तब तक फायर मत करना जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता. जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता. टिल. जब तक. कंडीशन. रिमेंबर, हमने एक रूल किया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज ऑफ कंडीशनल क्लॉज. टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है, वहां पर क्या यूज होता है? प्रेजेंट टेंस. टिल आई गिव यू ऑर्डर्स. विल इज रॉन्गली यूज देयर. टिल आई विल नहीं होगा, टिल आई गिव यू ऑर्डर्स. विल नहीं आएगा. रिमेंबर, हमने एक सेंटेंस किया था, द स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन दैट. हमने सेंटेंसेस में ही किया है. द स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू विल स्टैंड ऑन दैट. तो आंसर क्या होगा? द स्मॉल टेबल विल कोलैप्स इफ यू स्टैंड ऑन दैट. सिम. अब वो कंडीशनल इफ लगा था, यहाँ पे भी टिल कंडीशन है. जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता, जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दूंगा, नहीं, जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देता. तो टिल आई गिव यू ऑर्डर. दिस इज द करेक्ट फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट. Now again, 2014 में तो पूरे sentences easy आए हैं and my students can easily attempt this. Check it out. Neither of the candidates. Neither of the candidate means अभी मैंने बताया neither nor means
नाइदर नॉर लगेगा, दो के बीच में लगेगा, दोनों में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ के बाद सी अगेन, इनके बाद हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, बट इनके बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स में से एक भी नहीं। आइदर मीन्स कैंडिडेट में से कोई एक, नाइदर मीन्स कैंडिडेट में से कोई एक भी नहीं। बात किसकी हो रही है? एक की। एक के लिए आर नहीं, एक के लिए इज। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट, नाउ सी, दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन। मोर एफिशिएंट, मोर किस में लगता है बेटा? मोर एफिशिएंट, ये है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव में मोर प्लस एडजेक्टिव लगा है और उसके साथ देन। क्लियर? यहां तक तो ठीक है। दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर। एनी अदर भी कंपैरेटिव में लगता है, यहां पे भी ठीक। नाउ चेक आउट दिस इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स, जब हमने एनी अदर लगाया है, जस्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा इस चीज को। एनी अदर के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन लगता है, याद रखना। एनी अदर मतलब एक, एनी अदर एक। गलती कहाँ है? दिस। सो दिस इज द एरर पार्ट, ये नहीं होना चाहिए। एनी अदर इक्विपमेंट होना चाहिए, बिकॉज एज पर द रूल एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन लगता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट। So students, let's check out the sentence. The tin deposits in the area. बात किसकी हो रही है? tin deposits की। In the area would probably be. Probably means possibly, possibility. आप लोग मैथ्स में probability पढ़ ही रहे हैं, तो possibility है। Would probably be exhausted means खत्म हो जाएंगे। Into near future. दिख रही है आपको गलती? बताइए। Into near future, to is wrong. Into means when the subject is in motion. He came into the room. He came into the room. Into नहीं, यहां पर होना चाहिए in the near future. into की जरूरत नहीं है। आने वाले साल में या आने वाले टाइम में ना। सी, हमने अभी नियर का एक एग्जाम्पल किया था, नियरली 30 years ago। नियरली 30 years, तो 30 दिया है तो नियरली की जरूरत नहीं। यहाँ टाइम नहीं दिया, यहाँ ये बोल रहे हैं आने वाले टाइम में। अब यहाँ पर डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं दिया, इसलिए हम नियर यूज कर सकते हैं, बट टू इज रॉन्गली यूज्ड हियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। So students, now the next sentence. The next sentence is the operation of this machine means ये machine का operation। बात किसकी हो रही है? Operation of this machine is different. Different means अलग है। To that of the other. To that of the other. जब हम किसी चीज का डिफरेंस बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि ये उससे अलग है, दिस पेन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। जब हम कंपेयर कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? मैं उससे अलग हूं, तुम मुझसे अलग हो, ये किताब उस किताब से अलग है। दिस बुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। बात क्या हो रही है? फ्रॉम, टू नहीं। जब डिफरेंस दिखा रहे हैं तो सेंटेंस नीड द प्रेपोजिशन फ्रॉम, टू नहीं। नाउ वी हैव डन 60 sentences. Now I'll do the sentence from 61. So students, I'm starting with sentence number 61. Now 61 to 64 sentence we have done in the earlier session. ये आपके पहले वाले सेशन में हो चुके हैं। Now we move forward to the next. Now we have done till 66 in the earlier session. From this moment, I'm starting sentence number 67, which came in year 2013, paper number 2. Now check it out. Suppose if you were left alone. Suppose मतलब imagine करो, अगर। Suppose if you were left alone to live on a desert island, what would you do? अगर ऐसा होता कि आप अकेले हो एक आइलैंड पे, डेजर्ट आइलैंड, एकदम दूर सुनसान आइलैंड पे, क्या करोगे? चेक आउट द सेंटेंस। पहले सेंटेंस में क्या करोगे वो चेक आउट, डेजर्ट आइलैंड बाद में जाना। चेक आउट। नाउ सी, सपोज। सपोज मतलब सपोज यू गॉट अ चांस टू गो टू अमेरिका।
अगर तुम्हें चांस मिलता है अमेरिका जाने का, सपोज का मतलब अगर। नाउ चेक आउट इफ का मतलब अगर, इफ यू आर हैविंग अ चांस टू गो टू अमेरिका, तो इफ यू गॉट अ चांस टू गो टू अमेरिका। इफ मतलब अगर, सपोज मतलब अगर, दोनों का मतलब अगर। तो जब दोनों का मतलब अगर आ रहा है तो दोनों की जरूरत नहीं है, एक की जरूरत है। तो एरर इज इन दिस पार्ट, या तो सपोज यूज करो या इफ यूज करो, दोनों एक साथ नहीं। रिमेंबर हमने अभी अभी किया एंटर्ड इनटू, एंटर्ड मतलब अंदर आना, इनटू मतलब अंदर आना। तो व्हेनेवर टू वर्ड्स फॉर वन मीनिंग आर गिवन, दैट इज सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। Now this is the example of superfluous expression. एक ही वर्ड की जरूरत है, दोनों वर्ड की जरूरत ही नहीं है। Now the next, he wondered that, he wondered, उसने इमेजिन किया, उसने सोचा, उसको बड़ा अचंभा लगा सोच के, that what would be the next move of his opponents. Opponents जो आपके सामने खेल रहे हैं, आपके दुश्मन हैं, आपके एनिमी हैं, आपके ओपोनेंट टीम में है, आपके ऑपोजिट है। Opponents who had vowed to see him dislodged from power. वो टू सी हिम, जो चाहते हैं कि उससे पावर छिन जाए। डिसलॉज फ्रॉम पावर, उससे पावर छिन जाए, वो कुर्सी से नीचे आ जाए, वो पावर अपने स्टेटस से नीचे आ जाए। तो वो ये सोच रहा है कि उसके दुश्मनों का क्या रिएक्शन होगा, जो ये चाह रहे हैं कि वो कुर्सी से नीचे आ जाए। तो अगर ऐसा हुआ कि वो कुर्सी से नीचे आ गया, दैट मीन्स वो अपने लेवल से नीचे आ गया, वो पावर से नीचे आ गया, सत्ता से नीचे आ गया, तो उसके दुश्मनों का रिएक्शन क्या होगा। चेक आउट दैट। ही वंडर्ड दैट व्हाट। अब ही वंडर्ड, दैट मीन्स ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम इनडायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दैट यूज नहीं करते, दिस इज एन एरर। इनडायरेक्ट स्पीच में, इंट्रोगेटिव में और इंपीरेटिव सेंटेंस में दैट यूज नहीं होता। तो एरर इज इन दिस पार्ट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नाउ द नेशन शुड बी ग्रेटफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस। यस, वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल टू द आर्म्ड फोर्सेस, and you all are preparing for the armed forces. So let us salute you. Let us salute you all when you will become the officer in NDA, and I know you will fulfill my dream. Yeah, this is my biggest dream, that you must be in the uniform. Because बेटा जो level आता है ना, वो uniform से आता है. The girls die on uniform, not on your personality. They die on uniform. So you all must have a uniform. Okay, now see. The nation should be grateful to the armed forces protecting them. Yeah, we are grateful, we are thankful to the armed forces, to our military, to our Indian army, who all are protecting us. They are awake there because we are sleeping. हम सो सकें इसलिए वो लोग वहां जाग रहे हैं. Clear? Now what is the error in this? Check out. बहुत silly mistake है, बहुत silly mistake. Check out the spelling of grateful. Grateful की spelling ये होती ही नहीं है. Grateful की spelling ये होती है. This is the thing. Grateful की spelling, this is the spelling. Now the next. I do not know what is he doing to solve the problem. मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. What is the error in this? I do not know what is he doing. Now again, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आएगा तो वहां आएगा what he is doing. क्लियर? अगर ये what सेंटेंस के मिड में यूज है, उससे पहले कुछ फ्रेज है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है. क्लियर? अगर यहां सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क, दिस इज डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच में व्हाट यू आर डूइंग, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं. नाउ यहां क्वेश्चन मार्क नहीं है, इनडायरेक्ट स्पीच है, यहां पर इज नहीं चाहिए, यहां पर सी सब्जेक्ट चाहिए.
Clear? Now the next. For so many years, it is almost his habit to go to the bed at 10 p.m. daily. For so many years, बहुत सालों तक उसकी क्या हैबिट रही? Almost his habit, मतलब nearly, उसकी यही लगभग यही आदत थी. क्या आदत थी? To go to the bed at 10 p.m. daily. बेटा हमने ये रूल किया है आर्टिकल्स में, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में, आपके रजिस्टर में मैंने रूल कराया है. Whenever we are doing a task daily, नॉर्मल जो हम डेली कर रहे हैं उसमें द आर्टिकल नहीं लगता. ना सी, हमने यहाँ लिख भी आपको हिंट दिया है कि डेली मिला हुआ है. जो काम हम हर रोज कर रहे हैं वो डेली कर रहे हैं उसमें द आर्टिकल नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई टुक माई लंच एट 2 PM. क्लियर? अब मैं इसको बोलूं आई टुक माई लंच एट 2 PM डेली, डेली की बात हो गई. अगर मैं इसको बोलूं आई टुक द लंच इन द ताज होटल, तो अब वो लंच डेली वाला लंच नहीं है, वो स्पेशल लंच है क्योंकि वो मैंने ताज होटल में लिया है. तो कुछ स्पेसिफिक बताने के लिए ही दा लगता है. और अगर जो डेली काम कर रहे हैं उनमें दा नहीं लगेगा. वो रोज 10 बजे सोने जाता था, कुछ स्पेशल नहीं है, तो यहाँ दा की जरूरत नहीं है. दिस इज द एरर. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट. ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर. ही टुक डाउन आफ्टर हिज फादर. नाउ चेक आउट दिस. टुक डाउन आफ्टर, हमने अभी लास्ट ईयर पेपर से और ये क्रैश कोर्स से पहले वी डिड फ्रेजल वर्ब्स. आई गेव यू सम ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स. ठीक है, हमने वहां पर किया था टुक आफ्टर. टुक आफ्टर मीन्स रिजेंबल्स. अब यहां पर टुक डाउन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आफ्टर की जरूरत है, तो एरर इज इन दिस पार्ट. डाउन आफ्टर नहीं, ही टुक के बाद आफ्टर चाहिए. दैट मीन्स वो अपने फादर के जैसे दिखता है. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट.